Hello friends, today we are going to discuss one of my favorite topic of mathematics, which is data handling. I love the pictures, the different making of different graphs, bar graph, pie chart, everything in this chapter. And this is very scoring chapter also. Very easy questions you are going to get from this, and it is highly scoring. So please watch the video till the end, and if you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Fine. So let's start with the example of pictograph. Pictograph you have already learned in your prior class. It is representing of data using the pictures. As you can see in front of you, look at the picture which shows the number of cakes baked by Cake Shoppe in 1 week. एक वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे में ये जो केक्स थे बेक किए गए. एंड इसके अंदर की जो है, की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एक पिक्चर है ये 10 केक्स के इक्वल है. तो यहाँ पर कितने केक हो जाएंगे? मंडे में 1 2 3 4 5 और एक जो पिक्चर है वो है इक्वल टू 10. सो देर विल बी 50 केक्स. हेयर 3 multiplied by 10 it will be 30 cakes. 3 multiplied by 10 will be 30 cakes. Then 4 multiplied by 10 is equal to 40 cakes. Here it will be 1 2 3 4 5 6 multiplied by 10 is equal to 60 cakes, and here it will be 7 multiplied by 10 is equal to 70 cakes. So these are the cakes which are being baked during the different days. Now based on these, some question has been asked, what does this represent? This represents cakes. फाइन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द केक. हाउ मैनी केक्स वर बेक्ड ऑन मंडे? मंडे में कितने केक्स बेक हुए हमारे पास? 50 केक्स. ऑन विच डे 60 केक्स हैज बीन बेक्ड? कौन से दिन 60 हुए थे? इट वॉज ऑन फ्राइडे. ऑन फ्राइडे दे बेक्ड 60 केक्स. On which day maximum number of cakes were being baked? किस दिन सबसे ज़्यादा केक बेक हुए हैं? It was on Saturday. There were 70. So Saturday. Then how do you find the number of cakes baked on each day? What we do? We multiply the key by 10. Fine. So what is the key? The picture of cake. Whatever cakes are there, the number of cakes, fine. So the number of cakes multiplied by 10. This is how we are going to calculate. Next हमारे पास जो चीज़ आती है पिक्टोग्राफ के बाद वो है बार ग्राफ. बार, चॉकलेट बार तो खाई है आपने. चॉकलेट बार की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल. सो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बार ग्राफ में बनाएंगे डिफरेंट बार्स. रेक्टेंगल शेप का एक डायग्राम बनाएंगे. उसमें हम कैसे शुरू करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से. टाइटल होता है उसमें. वी हैव अ स्केल ऑल्सो. फाइन. वी हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स. देन वी हैव लेबल्स कि हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है. दैट आर कॉल्ड एज द लेबल्स. So let's draw it, then you'll be able to understand in a much better. Let's take up the example which is given in front of you. Make a tally chart of the Sudhir clothes. ये clothes आपको दिए गए हैं. We have to make the telegraph for this. अब telegraph बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा कितने clothes हैं, कैसे clothes हैं. So इसमें t-shirts हैं, sweaters हैं, jeans हैं, shorts हैं, shoes हैं और socks हैं. Fine. अब जो हम लेते जाएंगे उसको हम क्रॉस करते जाएंगे. जैसे ये है आपका टी शर्ट, तो टी शर्ट के लिए एक लाइन लगाई. फिर दूसरा है शॉर्ट्स, इसके लिए एक लाइन लगाई. फिर जीन्स, जो आप यूज़ करते जा रहे हैं उसको क्रॉस करते जाओ ताकि वो दोबारा ना हो. फिर जीन्स के लिए एक लाइन लगाई. ऐसे सब के लिए करेंगे हम. वी विल मेक अ टेलीग्राफ. अब टेलीग्राफ में यू नो दैट दिस इज़ फॉर 5. ऐसे आप कर सकते हो, या दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. Fine, this is 5. Fine, both are correct. So this is 5
and this is 6. So 6, 3, 4, 5, 2, 3. This way you just keep on going, you will get it. फाइन. अब ये हमारे पास आ गया एक डेटा, इसको लेके हमें बनाना है अपना बार ग्राफ. फाइन. अब इसमें देखो सबसे छोटा क्या है 2, दिस इज द स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ा क्या है 6. फाइन. सो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटी जो वैल्यू है 6 है और सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 6 है. सो हम इसी के बीच का डेटा ले लेते हैं. 0, 1, 2, 3 लेंगे तब भी हमारा बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है. तो इसको बनाने के लिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लगानी पड़ेगी. लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन. फाइन. So if you'll be able to see it clear way, so I'm making it with black pen. Fine. Let's make a horizontal line and one vertical line. Fine. This is the vertical line. The horizontal line is called as X. The vertical line is called as Y. फाइन. ये आपको ध्यान रखना है. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एंड वर्टिकल लाइन इज वाई. सो दिस इज योर 0. फाइन. सो हमारा डेटा छोटा ही है, 6 तक ही जाना है हमें. सो वी विल टेक, सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फाइन. 7 तक हमने इसको यहाँ पे बना लिया. और इस साइड ये क्या है, ये 1, 2, 3, 4 क्या है, 1, 2, 3, 4 ये है क्लोथ्स. ठीक है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके नंबर ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. और दूसरी चीज हमारे पास क्या है नीचे, ये नंबर ऑफ क्लोथ्स है और यहाँ पे आ जाएगा टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. अब देखो हमने यहाँ पे सिंपल जो 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स होता है यहाँ पे मार्किंग की है. ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे. जो आपकी डार्क वाली ग्रीन है एक उस लाइन को लेंगे, ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी दिस वे. फाइन. अब ये बार ग्राफ बनाने के लिए अब एक जो आपका 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, एक बॉक्स छोटे छोटे जिसमें 10 बने हुए हैं उसको हम छोड़ देते हैं. फाइन. अब नेक्स्ट के लिए अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, टी शर्ट्स. वी वर हैविंग टी शर्ट्स. कितनी थी 6. सो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे टी शर्ट और वो भी 6. सो ये जो दो एक छोड़ने के बाद हमारे पास एक ये डॉट आ जाएगा, एक ये डॉट. देखो यहाँ पर ये वाले बॉक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, इतना बॉक्स को. फाइन. सो हमने 6 तक के यहाँ पे मार्किंग कर दी ताकि हमें पता हो कि हमें कितनी ऊंची लाइन लगानी है ये. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ बार फॉर दिस. चॉकलेट बार नहीं, ये वाली बार. फाइन. और ये किसके लिए हमें बनाई है, टी शर्ट के लिए. तो यू कैन राइट इट टी शर्ट. टी शर्ट हम यहाँ पे बनाएंगे इसको. फाइन. उसके बाद है हमारे पास स्वेटर. स्वेटर कितने हैं 3. फाइन. इसके बाद एक बॉक्स को हम छोड़ देंगे, ये बॉक्स. फाइन. इक्वल डिस्टेंस को हमें छोड़ना है. फाइन. सो ये है कितनी थी 3 का है यहाँ है ना, तो देख के हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे पहले अपनी मार्किंग के लिए. देन मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन दिस वे एंड देन मेक अ बार फॉर दिस. ठीक है. सो यहाँ पे ये कितना था हमारे पास 6, ये कितना है 3, और ये किसके लिए है, स्वेटर्स के लिए. फाइन. अब नेक्स्ट क्या है, जीन्स. जीन्स कितनी है 4. सो 4 का है, ये 4 रहा, तो हम एक बॉक्स को छोड़ना है. ठीक है. उसके बाद हम बॉक्स के लिए इसके लिए डॉट लगा देंगे और वी विल मेक अ, वी कैन मेक डायरेक्टली ऑल्सो अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है. फाइन. सो एंड डोंट मेक इट विद रफ हैंड, यूज स्केल ऑलवेज.
फाइन. सो दिस वाज फॉर जीन्स. और ये कितना था? 4. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट्स, हैं हमारे पास 5. सो एक बॉक्स को छोड़ना है, लीव 1 बॉक्स, और 5 पर डॉट लगाएंगे, जस्ट 1 अबव दिस. फाइन. सो ये हमारे पास हो गया, ये बन गया अब जीन्स के लिए. फाइन. शॉर्ट्स के लिए, सॉरी, शॉर्ट्स. और ये कितना है? 5. फाइन. उसके बाद क्या है? शूज. लेट्स मेक इट शूज. हाउ मेनी शूज आर देयर? 2. जस्ट 2 शूज. लेट्स मेक इट डायरेक्टली. ये देखिए, यहाँ से आप चेक करेंगे, ये शूज के लिए बन गया. फाइन. सो ये हो गया आपका शूज. और शूज कितने हैं? 2. और अब आप इसके आगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, ऐसे ही एक आप बॉक्स को छोड़ देंगे, एक बॉक्स को छोड़ेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक फॉर सॉक्स. सॉक्स कितनी है? 3. तो 3 कैसे आएंगी? यहाँ तक आ जाएंगी आपको. ठीक है, आपको ग्राफ पेपर पर ही बनाना है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग. एक बॉक्स को छोड़ के आप बना लेंगे. ये एंड में बन गया आपका. फाइन. किसके लिए? सॉक्स के लिए. 3. फाइन. तो ये बन गया हमारा कंप्लीट. सो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? एक बॉक्स हम छोड़ते हैं, एक पर बनाते हैं. एक बॉक्स छोड़ेंगे, एक पर बनाएंगे. दूसरा, इनकी वैल्यूज़, जितना भी बॉक्स आपने हाइट जितनी भी बनाई है, इसको ऊपर मेंशन करते हैं. ये जो है किसके लिए ये बॉक्स है, वो हम यहाँ बनाएंगे. नंबरिंग के लिए ये वाई एक्सिस है, इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके लेबल्स ये आपको लिखने होते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या बनाया है आपने, एंड देन यू मेक दिस अकॉर्डिंगली. फाइन. नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ. दैट मीन्स ग्राफ आपको दिया है और आपको क्वेश्चन, उसको देख के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फाइन. सो ड्रिंक ब्रॉट टू रिवर साइड हाई स्कूल. हाई स्कूल में कुछ ड्रिंक्स आए हैं, उनके बारे में ये ग्राफ है. कौन कौन से ड्रिंक आए हैं? कॉफ़ी, टी, मिनरल वाटर, हॉट चॉकलेट और ऑरेंज जूस. इस साइड हमने एक्स एक्सिस में लिया है ड्रिंक्स, और वाई एक्सिस में लिया है नंबर ऑफ ड्रिंक्स कि कितने आए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रिंक वाज मोस्ट पॉपुलर. कौन सा ड्रिंक जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, जिस बार की, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा. सो किसकी है? टी. सो टी जो है वो सबसे पॉपुलर है. हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ ड्रिंक वर बोट. हर टाइप, कितने टाइप के आपके पास ड्रिंक्स उन्होंने खरीदे हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 टाइप के जो हैं ड्रिंक आपके पास उन्होंने खरीदे हैं. हाउ मेनी ड्रिंक्स वर ब्रॉट ऑल टुगेदर. कितने ड्रिंक्स हैं जो आपने खरीदे हैं? सो ये कितने हैं? ये देखो, यहाँ से 40 है. ये कितने हैं? 80. ये यहाँ से देखो 20. ये 50 और दिस वन इज 40. सो टोटल कितने हैं? इन सबको ऐड करेंगे. दैट मीन्स 40 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 40. इन सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट 230. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. विच ड्रिंक वर ट्वाइस एज पॉपुलर एज मिनरल वाटर. मिनरल वाटर से दुगना कौन सा जो ड्रिंक है वो है? मिनरल वाटर 20 ने पिया, इससे दुगना, ट्वाइस मतलब 40. 40 किसका है? कॉफ़ी का और ऑरेंज जूस का. सो आंसर क्या आएंगे इसके? ऑरेंज जूस एंड कॉफ़ी.